सो देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 18 कि लिखे ऑन 30 जून 2021 a flash flood damaged the warehouse and factory of ABC corporation। एक फ्लड आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डैमेज हो गया, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग द होल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ WIP ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ। there was no damage to either the raw materials or finished goods inventory. A physical verification taken after the flood revealed the following valuations। जब आफ्टर द फ्लड ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? you are having raw material of rupees 62,000, WIP 0 and finished goods 1,19,000। जीरो ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एक बार इतने तक दोबारा सोचो क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ WIP ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਲੱਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ WIP ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। मतलब उस दिन WIP ਸੀਗਾ बट फ्लड ਦੀ रीजन ਤੋਂ डिस्ट्रॉय हो गया। यस और नो? तो आफ्टर फ्लड तो जीरो ही दिखूगा, तो फिजिकली को मिलूगा थोड़ी स्टॉक। यस और नो? सो दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज आफ्टर द फ्लड। दूसरी साइड की लिखा है इन्वेंटरी ऑन 1 जनवरी मींस ओपनिंग रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स। A review of the books and records disclosed that the gross profit margin historically approximated 25% of sales। The sales for the 6 months of 2021 were 3,40,000. Raw material purchases were rupees 1,15,000. Direct labor cost for this period were rupees 80,000. And manufacturing overhead has historically been 50% of direct labor। ये सारा डाटा दसता। Compute the cost of work in progress inventory lost at 30 June 2021 by preparing a statement of cost and प्रॉफिट। कहते उसी WIP ਦਾ ਕਾਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੀਨਸ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ what was the value of WIP which is destroyed। क्लियर है? जा कंसेप्ट समझ आया जीरो वाला? बिकॉज फ्लड्स ने WIP इन्वेंटरी डिस्ट्रॉय करती सी, so after the flood physical verification showed that WIP became zero। yes or no? तो की करना है इतने? सब तो पहली चीज जो फाइंड करना, लेट द कॉस्ट ऑफ WIP ऑन 30 जून बी एक्स। की क्या क्वेश्चन ने प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सब तो पहली चीज बोलो कॉस्ट शीट्स की आंदी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, जिन्ना आंसर कर सकते ठीक है तुसी करना ट्राई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000। दिस वाज राजा आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन आफ्टर फ्लड मींस जितना क्लोजिंग टाइम था ना, ओपनिंग चाहिए था पहला कितना 30,000। उस तो बाद ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल चेक करो है 1,15,000। ठीक है, ऐड हो गया। आफ्टर दैट कैरेज इनवर्ट नहीं है, नॉट अवेलेबल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना 62,000। वी गॉट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यस और नो मधुर? यस और नो? आफ्टर दैट नेक्स्ट बोलो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस रुपीज 80,000 ऐड करके किया जाऊंगा प्राइम कॉस्ट। आफ्टर दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स हाउ मच? फैक्ट्री ओवरहेड मींस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड सारे सेम नाम है। 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वाज 80,000 सो ਉਹਦਾ 50% ਇੱਥੇ क्या होगा 40,000 रुपीज। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स तक क्लियर हो गया सारा। वी गॉट फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग WIP कितना 1 लाख ऐड कर दोगे। इस तो बाद नाम की आंदा कल सीखिया सी
ओपनिंग WIP ऐड करके कि नाम सीखा सी कल? टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, वो नाम कल सीखा सी तो हम रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। हर क्वेश्चन बोलोगे आप ही याद हो जाऊगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ WIP, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਰਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਆਫਟਰ ਫਲੱਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ x ਤੇ। ਸੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3,03,000 ਮਾਈਨਸ x। ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड नहीं गिवन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम आ गई, यस और नो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बाद add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, both are given, so 1,40,000 ऐड किया, then 1,19,000 माइनस किया, इतने आ गए। इन बिटवीन की नाम आना सी ओपनिंग तो बाद, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करके की नाम आंदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। प्रैक्टिस तो करो ना एक दो क्वेश्चन, वैसे नेसेसरी नहीं है, बट अगर मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन आंदा उत्थे फाइंड करने लिए यूज था होना ना, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन से जरूर लिखो ताकि याद हो जाए। ठीक है, जिस क्वेश्चन नहीं भी लिखन लगे, एम्प्टी लाइन तो आंदी ना, बोलो तो सही एटलीस्ट, याद नहीं भूलना चाहिए। एम आई क्लियर, यस और नो। सो ਤੁਹਾਡੇ को आ गया 3,24,000 माइनस x। उस तो बाद एक किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस तो बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं गिवन, ਤੁਹਾਡੇ को आ गया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे देखो और की गिवन है, फर्स्ट 6 मंथ्स वही 30 जून तक है ना, 1 जनवरी तो 30 जून, फर्स्ट 6 मंथ्स की गल है। सेल्स कितनी है, 3,40,000, एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना, 25% ऑफ सेल्स, तो 3,40,000 का 25% प्रॉफिट आ जाऊगा, दैट इज ₹85,000। दोनों वैल्यूज आ गई बोलो, और इतने तक तुसी एक्स दी टर्म्स सी, दिस इज अ इक्वेशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, यस और नो। इस साइड तो भी सोच सकते हैं, इक्वेशन आ गई टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक्स दी वैल्यू मिल गई, यस और नो। 3,24,000 माइनस एक्स, दिस वाज द टोटल कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट कितना 85,000 इज इक्वल टू सेल्स कितनी 3,40,000, सो बैलेंस एक्स मिल गया तो ₹69,000 मींस देयरफॉर। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਪੂਰੇ। x ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸੋ देयरफॉर cost of WIP lost on 30 June is equal to x, that is equal to 69,000 rupees. This was the closing stock of WIP which was lost due to flood. Yes or no? Easy? Comfortable? Any doubts? पक्का? एक वाला क्वेश्चन देखो 21st। The books of Adarsh Manufacturing Company presents the following data for the month of April 2021. Direct labor cost is 17,500। ध्यान ना सुनो, इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, इस क्वेश्चन दी दो लाइंस गिवन है, देखो स्टार्टिंग दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस दी हुई है। ठीक है, सो सब तो पहली चीज रीड करो कि लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17,500 being 175% of works overhead. This direct labor cost is 175% of works overhead, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 175% करोगे तो की मिलेगा 17,500, दैट इज लेबर कॉस्ट, यस नो। मुस्कान क्लियर होगी चीज, मींस 175 कौन है, लेबर इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड के वर्क्स ओवरहेड इज 175 ऑफ लेबर, लेबर इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, मतलब यू विल मेक अ मैजिक बॉक्स। ਅਸੀਂ बॉक्स लिखा डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर इज 175% ऑफ
फैक्ट्री ओवरहेड ਤਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ओवरहेड्स? जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड। सो प्रोपोर्शन लगाई, फैक्ट्री ओवरहेड द अमाउंट आ गई ₹10,000। एवरीवन यस और नो? पहला कंसेप्ट डिपेंडिंग अपॉन द बॉक्स इजी हो गया, ठीक है, यस और नो? उस तो बाद नेक्स्ट चीज और देखिए, सानू गिवन अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। हमने कॉस्ट शीट द फॉर्मेट याद करो, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दे प्राइम कॉस्ट तो बाद की मिलदा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, देन ऐड ओपनिंग WIP की मिलदा टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, माइनस क्लोजिंग WIP की मिलदा फैक्ट्री कॉस्ट मिलदा। फैक्ट्री कॉस्ट की कर दे अगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर दे, फिर की मिलदा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन ऐड ओपनिंग फिनिश माइनस क्लोजिंग फिनिश की आंदा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आए कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हुंदा, यस, बट अज उन्होंने की किया, इस कंपनी का पैटर्न सी कहते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर असं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड नहीं करते, मीनस उस तो बाद ऐड करते, पहला नहीं ऐड करते। एक्सक्लूडिंग गिवन है ना, COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज गिवन, मीनस तुसी जिथे पूरा कॉस्ट शीट बनाओगे उत्थे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन बिटवीन ऐड नहीं करना इस क्वेश्चन, बाद च ऐड करोगे जिथे सैलिंग ओवरहेड्स आ उस जगह ते ही तुसी ऐड करोगे। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਬੀਕਾਮ ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਵਰਡ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटिंग, तो वो कंसेप्ट है ही नहीं, रीजन है यदि बट बीकॉम चो चीज कवर नहीं हुई, तो लिए फिर टेंशन का कुछ भी नहीं, तुसी इंग्लिश पढ़ी कि COGS इज नॉट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ऊपर ऐड ना करो नीचे कर दियो। एम आई क्लियर? इनडायरेक्टली अगर कंसेप्चुअल गल करिए, दे आर सेइंग दिस इज नॉट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ दिस कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नीचे आना ऊपर नहीं आना, ठीक है। सो साडे लिए सॉल्विंग पैटर्न की है, असि ऊपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड नहीं करना, बाद करांगे, ठीक है। आगे देखो, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग, कोई डाउट नहीं। सेलिंग एक्सपेंस सिंपल, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये भी कितने आने बाद में आऊगे, अज ऊपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जगह ते नहीं आने। सेल्स बिल्कुल लास्ट यूज होंगी, कहते कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटीरियल्स परचेज्ड, परचेजेस पूरे क्वेश्चन च मिली कितने नहीं मिली, उन्हें खुद क्या आप गिवन नहीं आए, तुसी फाइंड करके दसो, मींस इट विल बी टेकन एज X, ठीक है, इट इज अ मिसिंग फिगर। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो द प्रॉफिट। कल भी एक क्वेश्चन किया जिस परचेजेस मिसिंग सी, याद करो जब कुछ भी रजा मिसिंग हुंदा कुछ एक्स्ट्रा भी तो देंदे हो, कल की गिवन सी टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उत्थों ही कितों मिसिंग वैल्यू फाइंड की थी। सेम वे अज की गिवन आ COGS गिवन आ, बट इतने ट्विस्ट की है, COGS याद रखना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड नहीं करना, तुसी नहीं तो उन्हें यूज करोगे वो गलत हो जाना, क्योंकि वो हेल्प ना तो परचेज मिलने, और अगर असं COGS ही गलत ले लिया तो परचेजेस भी गलत आने, इसलिए ध्यान ना दो, ठीक है। करिए डिस्कस करिए। सब तो पहली चीज ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गए 10,000, सो लेट रॉ मटेरियल परचेज भी X, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। पहला पॉइंट बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग सानू कोई टेंशन नहीं, सारे क्लियरली गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग यस और नो, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स तीनों गिवन है क्लियरली, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल डन, परचेजेस विल बी टेकन एज X, टोटल आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 माइनस 10,600 की आया माइनस 2,600 एंड X पॉजिटिव, यस और नो। उस तो बाद की ऐड करना डायरेक्ट लेबर, कितों मिलया, डायरेक्ट लेबर गिवन सी, मिसिंग सी फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो फाइंड कर ले। सो डायरेक्ट लेबर इतने मुस्कान पुट करता रहा 17,500, तो को की आ गया
प्राइम कॉस्ट तो बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर फाइंड कर रहे हैं 10,000 ऐड करते, ओके देन फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है, थर्ड को आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। इस तो बाद की कर दे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, पर आज ऐड नहीं कर, समझ रहे चीज, क्लियर है चीज। वो ਇੱਥੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈਡ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈਡ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੋ ਸਟਾਕਸ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈਡ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਸੋ ਓਪਨਿੰਗ ਡਬਲਯੂਆਈਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਬਲਯੂਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ फिनिश गुड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं, एडलेस कर ले सड़ को किया आ गया COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एम आई क्लियर, यस और नो, क्लियर। जिद्दां ही ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 19,500 plus x is equal to 56,000 which was given, yes or no। COGS excluding office administration overheads 56,000, can you find x now? Rupees 36,500, so therefore raw material purchased is equal to x, that is equal to 36,500, clear, first portion done। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन ने और की क्या, prepare a statement of cost showing the various elements of cost and also the profit। ਹੁਣ पूरी cost sheet ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ, फिलहाल नोटबुक ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ बट फाइनल पेपर ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ठीक है। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ cost sheet ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਣੀ 56,000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਸੀ COGS ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹੜਾ COGS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बट आज ऑफिस वाले भी ऊपर नहीं आए थे, इस जगह ऐड हो गए। सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इतने ऐड हुए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इतने ऐड हुए, तो को आ गया टोटल कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड सेल्स वर गिवन, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਟੂ ਟਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਟੂ ਕਾਲਮਸ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, एक कॉलम पूरा एक्स का सॉल्व कर लिया, उस तो बाद खुद वर्किंग नोट नीचे आ जाऊगा, तो ਤੁਹਾਡੀ पूरी कॉस्ट शीट ਇੱਥੇ एक्चुअल वैल्यूज ना बन जाऊगी ना, और ਉੱਥੋਂ ही ਅਸੀਂ कंटिन्यू करके पहला पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर सकते, और आ वाली चीज नीचे वर्किंग नोट आ जाए आफ्टर कॉस्ट शीट, समझ रही चीज। पूरी कॉस्ट शीट के अंदर दो कॉलम्स बना लियो, COGS तक एक कॉलम इंटरनल कॉलम चलता रहेगा, बाहर सारी वैल्यूज बाद पुट करके एक्सपोर्ट करके सॉल्व हो जाओ, क्लियर है जा, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट राजा, मुस्कान, हरनूर, राजेश्वर, इधर एनी डाउट राजा, क्लियर। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन हम ना दोनों,